Hi students, today again we will start our same topic, same chapter, another topic. Here today we have C1.2. What is the meaning of C1.2? In last video it was written C1.1. C1.1. C1.1 means chapter 1 class first. Here C1.2 means chapter 1 class second. Okay, yesterday we had talked about burning of magnesium ribbon also and physical and chemical change. Today we will start with our new topic. Before starting our today's lecture, yesterday Karthik one doubt was there. He was asking, before burning of magnesium ribbon, why we will rub that magnesium ribbon? Very nice question, Karthik. If you also having any doubt regarding any topic, simply you can type your doubt in comment box and definitely we will get back with same your doubt. Understood? कोई भी डाउट हो simply comment box में लिख के हमें बता सकते हो. इस क्वेश्चन का आंसर सुनिए बच्चों. मैग्नीशियम रिबन. मैग्नीशियम क्वेश्चन क्या है? अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हाई वी आर रबिंग मैग्नीशियम बिफोर बर्निंग, और वी कैन से कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसको हम रब क्यों करते हैं. आंसर सुनिए. हमें पता है कि मैग्नीशियम क्या होता है? हाईली रिएक्टिव. मैग्नीशियम क्या है? हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स. एज if we will keep in air, it can react with oxygen in air and our result will be different. To prevent that, we have to rub magnesium before burning. Why? Because it is highly reactive, it can easily react with air and our result will be wrong. For that we have to rub this magnesium. Hope Karthik you got your answer. If you also having, you can simply ask. Today's topic will listen. Today's topic, after that activity, another activity also we have. Okay, उस एक्टिविटी के बाद हमारी एनसीईआरटी बुक में नेक्स्ट पेज पे अनदर एक्टिविटी, एक और एक्टिविटी है. उसमें सिंपली क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है कि आप लेड नाइट्रेट लीजिए. क्या लीजिए? लेड नाइट्रेट. ठीक है, ले लेंगे जी, कोई बात नहीं है. ओके, और उसके बाद आप क्या लीजिए? पोटेशियम आयोडाइड. पोटेशियम आयोडाइड. और आपसे पूछा है कि क्या होगा? पोटेशियम आयोडाइड. क्वेश्चन क्या है अगला एक्टिविटी का? आपके एनसीईआरटी बुक में सिंपली लिखा हुआ है कि आप लेड नाइट्रेट लीजिए इन ए बीकर और आप क्या लोगे? पोटेशियम आयोडाइड. इन दोनों को मिलाइए और व्हाट यू विल बी ऑब्जर्व दैट यू टेल. तो आंसर सुनिए बच्चों. lead nitrate, what is the chemical formula of lead nitrate? PbNO3 twice. This is the chemical formula of lead nitrate. What is the chemical formula? PbNO3 twice. Plus another you have to take potassium iodide. Potassium means K. Potassium means K and iodide means I. Ki. Okay. Now what you will observe that was the question. Simply what it will form? Potassium iodide plus it will form PbI, Pb and I, and remaining what is there? KNO3. KNO3, and we will balance the equation. 2 we can write here. Here 2 equation will be balanced, and here also 2 we can write. I is here 2. Now here we can write. Okay, we can balance. Balancing today we will do, don't worry. Okay, today balancing, our last topic will be how to do the balancing. That I will make you understand. First answer you understand, student. After adding this PbNO3 plus Ki, what you are getting? Pbi plus KNO3. Okay, this is the answer. It is yellow color precipitate. This line also you can add. It is what? Yellow color. ये दो चीज याद रखना बच्चों. क्या क्या याद रखेंगे? देखो फिर से बोल रहा हूँ. हमारा क्वेश्चन है कि भाई हमें लेना क्या?
लेड नाइट्रेट लेना है और पोटेशियम आयोडाइड लेना है, या फिर एग्जामिनर बोल देगा कि बच्चों आप लीजिए लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड, बताइए इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा वो बताइए। आपको सिंपली क्या करना है, एक तो रिएक्शन लिख देंगे कि भाई लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस प्लस Ki PbI, तो ये जो बना है इसको हम बोल देंगे कि इट विल फॉर्म लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। एक चीज और बोल देंगे, ये एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है, ठीक है, इसका क्या क्या मिलेगा हमें, येलो कलर का प्रेसिपिटेट। अगर हम टेस्ट ट्यूब के अंदर मिलाएंगे तो हमें येलो कलर का प्रेसिपिटेट। ये दो ऑब्जर्वेशन हम लिख सकते हैं। होप आप इसका आंसर अब दे पाओगे। क्या अगेन मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है कि अगर हम लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को मिलाएंगे तो क्या होगा। सिर्फ दो चीज याद रखना बच्चों, एक बार रिएक्शन भी बहुत सिंपल है। कैसे रिएक्शन सिंपल है, देखिए लेड नाइट्रेट PbNO3 की ट्वाइस, सिंपली है, ये जो Pb है ये किसके से डिस्प्लेस हो जाएगा, I के साथ। बस Pb और I को मिला दो और जो बच गया उसको लिख दो। Pb और I को मिलाया मैं तो PbI, और बचा क्या, एक तो K बच गया और एक है NO3 बच गया। मुझे पता है KNO3, और बाद में बैलेंस करके हम रिएक्शन को लिख सकते हैं, और ये बनाएगा येलो कलर का प्रेसिपिटेट। होप फर्स्ट टॉपिक इज क्लियर। ओके, एक्टिविटी नाउ, इन एनी केमिकल रिएक्शन what are the changes you are observing, another topic. ओके, सिंपली कि कोई भी भैया केमिकल इक्वेशन है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं वो बताइए आप। सिंपली बहुत आसान क्वेश्चन है, मुझे नहीं लग रहा इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या, कि क्वेश्चन पूछा कि भाई कोई भी केमिकल इक्वेशन होती है उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं वो बताओ, तो आप क्या क्या चेंजेस बता सकते हो। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन अजीब सा भी लगता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या क्या चेंजेस, तो बच्चा सोचता भी रहता है कि क्या क्या चेंजेस, मतलब क्या 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 चेंजेस। सुनिए, ध्यान से सुनिए, क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। सिंपली एक तो हमारा चेंज इन कलर हो सकता है। चेंज इन कलर का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए पहले कुछ और कलर था और अब कुछ और कलर आ गया। जैसे हमें पता है कि कॉपर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन डालते हैं तो कॉपर कार्बोनेट, किसके अंदर, कॉपर के अंदर हम अगर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन डालते हैं तो ये कॉपर कार्बोनेट फॉर्म करता है, जो कि किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, और बिफोर ग्रे कलर का होता है। तो ग्रे से ग्रीन कलर हो जाना, ये भी क्या है, चेंज इन कलर है, जो किसके अंदर होता है, जो कि एक केमिकल रिएक्शन के अंदर होता है, पहला चीज। दूसरा, गैस भी बाहर आ सकती है। गैस का बाहर आना क्या कहलाता है बच्चों, इवोल्यूशन ऑफ गैस। बड़ा सिंपल है, हमने पढ़ा भी होगा कि जब भी एसिड में, जब भी हमारा एसिड है या मेटल है, मेटल के अंदर हम एसिड डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये भी एक किसका एग्जांपल है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है, और ये जो निकला ये क्या है, चेंज है। तो चेंज में हमारा क्या हो सकता है, चेंज इन कलर हो सकता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है, चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है। तीसरा चेंज क्या हो सकता है बच्चों, चेंज इन टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है कि पहले हमारा सॉल्यूशन कुछ और टेम्परेचर, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम है, कैल्शियम मतलब चूना, चूने में पानी डालो, चूना पानी मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर हम क्या डालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, क्यों, क्योंकि देखो आप, ये कैल्शियम है, ओके, कैल्शियम में हमने पानी डाला, ये हमारे पास आ गया कैल्शियम ऑक्साइड। आपकी आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, आपकी बुक में लिखा हुआ है स्लैक लाइम और लाइम, ओके, तो उसके बारे में है। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, ये जब, जैसे आपने देखा होगा कि घर में जो पुट्टी करने वाला आता है उससे पहले वो रोगन करते हैं, तो वो उसमें जैसे पानी डालता है तो एक गैस भाप से निकलने लगती है। भाप निकलना मतलब पहले वो ठंडा था और जैसे ही पानी डाला वो गर्म हो गया, इट मीन्स चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। तो ये हमारे कोई भी केमिकल इक्वेशन में चेंजेस हो सकते हैं, कलर भी हो सकता है, गैस भी निकल सकता है, चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है, और डिफरेंट चेंजेस जो भी आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जितने भी चेंजेस होते हैं, कोई नई चीज बनना मतलब केमिकल चेंज है, और केमिकल चेंज है तो मतलब केमिकल इक्वेशन है। अंडरस्टूड हो, केमिकल चेंज ये बहुत इजी टॉपिक है, इसमें ज़्यादा आपको दिमाग भी नहीं लगाना है कि चेंजेस मतलब मैं कैसे बताऊंगा, एग्जाम में आ गया तो चेंजेस क्या, नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं है, 3-4 चेंजेस है, हम बता सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशन। कल भी थोड़ा सा बताया था केमिकल इक्वेशन के अंदर, जैसे हमारी कोई भी रिएक्शन है, कल वाली रिएक्शन ही ले लेते हैं,
मैग्नीशियम ऑल द क्लासेज आर कनेक्टेड विद ईच अदर। एक चीज ध्यान रखना बच्चों, सारी क्लासें आपस में जुड़ी हुई है। पहले वाली क्लासें नहीं देखी तो ये वाली क्लासें कहाँ से समझ में आएगी। कोशिश करना कि कंटिन्यू डेली बेसिस पे एक एक क्लासेज आप जरूर देखो। क्यों? क्योंकि टॉपिक वाइज समझोगे। डाउट है पूछो, डाउट है तो पूछो, कोशिश करो, समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर से देखो। उम्मीद करता हूं एक बार में ही समझ में आ जाए। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सी, अगर कल वाली क्लास आपने देखी होगी तो आपको याद आ गया होगा कि क्या बनेगा। कल कितनी बार बोला था मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगेन बोल रहा हूं कि क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसको वर्ड की फॉर्म में लिखो, इस फॉर्म में लिखो, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, केमिकल इक्वेशन। ज़्यादा कुछ दिमाग ही नहीं लगाना इसमें तो। और वैसे कुछ कोई पूछता भी नहीं है ये क्वेश्चन कि बच्चों बता डिफाइन केमिकल इक्वेशन। 10th क्लास में मुझे नहीं लगता कोई एग्जामिनर ऐसा होगा जो ये पूछेगा आपसे कि केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन बताओ। फिर भी अगर मान लीजिए पूछ भी ले तो आपको तो पता होना चाहिए कि केमिकल इक्वेशन को हमने जो जितनी भी केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं उनको वर्ड में लिखना, ये सब हमारी क्या है, ये सब हमारी केमिकल इक्वेशन ही है। जैसे इसको मैं Mg प्लस O2 सॉरी Mg प्लस O2 ये हमारा बन जाएगा MgO। अंडरस्टूड? तो ये हमारी क्या है, सब केमिकल है, कोई ज़्यादा नहीं है। आज का मेन है राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को लिखना कैसे है बच्चा परेशान हो जाएगा कि केमिकल इक्वेशन को मतलब मैं कैसे लिखूं। मान लीजिए कि Mg प्लस O2 और ये हो गया हमारा MgO। बैलेंस करूं? चलो बैलेंस कर देता हूं। यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे और यहाँ 2। सब आज बैलेंसिंग करेंगे, चिंता मत करो कि बैलेंसिंग कैसे कर रहे हैं सर, यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ। आज का टॉपिक हमारा लास्ट यही रहेगा कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं। तो ये देखो Mg प्लस O2 MgO, हमारा टॉपिक क्या है, राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन। कि भाई हमें ये पता लगाना कि केमिकल इक्वेशन लिखेंगे कैसे लिखेंगे भाई। एक एरो है, लिख दो एरो, ठीक है। तो सिंपल सा भाई केमिकल इक्वेशन के लिए एरो होते हैं, एरो के 2 फॉर्म होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। ओके, लेफ्ट में हमारा क्या आएगा, इस साइड ये हमारा हो जाएगा, इसका नाम बोलते हैं इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। और एरो के बाद जो बनता है वो उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। बहुत सिंपल है। आशा करता हूं कि ये तो आपने पढ़ा ही होगा 6th 7th में, 8th में ही पढ़ा होगा, ये पढ़ा ही है आपने, ठीक है। कि केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए क्या होते हैं, एक रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट होता है। दोनों को हम एरो मींस एरो, ये वाला एरो के साइन से क्या करते हैं, एरो के सिंबल से हम क्या करते हैं, दोनों को सेपरेट करते हैं। रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होंगे, प्रोडक्ट बनेगा, या फिर प्रोडक्ट ब्रेकडाउन हो जाएंगे तो रिएक्टेंट ब्रेकडाउन होकर प्रोडक्ट भी बना सकता है। वो अलग अलग चीजें हैं, वो हमें नहीं समझनी। फिलहाल तो सिर्फ ये है कि केमिकल इक्वेशन को लिखना कैसे है, सभी बच्चे लिख देंगे, कोई ज्यादा ऐसे मजाक ही है। मतलब कोई पूछ ले कि भैया केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं, तो आप 10th में होगे तो बोलोगे भैया मजाक ही कर रहे हो शायद, केमिकल इक्वेशन तो हर कोई भी लिख देगा, ठीक है। आज का मेन टॉपिक आता है बच्चों क्वेश्चन। कल वाली क्लास में बताया था कि Mg के ऊपर क्वेश्चन आता है, इधर भी क्वेश्चन आता है। बैलेंसिंग के बारे में बात करते हैं। पहले तो मतलब समझिए, जैसे हमने ये 4 एग्जाम्पल करेंगे आज, ठीक है। H2 प्लस O2 H2। पहले तो मतलब समझ लीजिए कि बैलेंसिंग का मतलब होता क्या है। बैलेंसिंग का मतलब ये है कि जो एलिमेंट, जो एटम हमारे रिएक्टेंट में है, उनका जो नंबर और जितने भी वो सेम एलिमेंट हमारे प्रोडक्ट में, उन दोनों का नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग। फिर से बता रहा हूं, बैलेंसिंग का क्या मतलब है। बैलेंसिंग का सिर्फ इतना सा मतलब है बच्चों, जितने भी जो हमारे एटम हैं वो रिएक्टेंट में कितने हैं, प्रोडक्ट में कितने हैं, द नंबर ऑफ एटम दैट आर प्रेजेंट इन रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम दैट आर प्रेजेंट इन प्रोडक्ट। द नंबर ऑफ एटम दैट आर प्रेजेंट इन रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रिएक्टेंट दैट आर प्रेजेंट इन प्रोडक्ट। वो हमारा क्या होता है, बैलेंसिंग। अब बहुत सी बार तो ऐसा होता है कि बच्चों की नंबर ऑफ ऑलरेडी जो इक्वेशन है हमारे पास, उसके अंदर ही नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट होता है, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत सी बार नहीं भी होता तो हम उसको करेंगे तो हम फिर क्या बोलेंगे, हमने बैलेंसिंग कर दिया। और इक्वल है तो हमें कुछ करना ही नहीं है, हम बोल देंगे कि ये रिएक्शन तो ऑलरेडी बैलेंस है, इसमें मैं क्या करूं, ये तो ऑलरेडी बैलेंस है। ओके, तो अब देखो रिएक्टेंट
हमारा H2 प्लस O2 है, प्रोडक्ट हमारा क्या है H2 है। नंबर ऑफ एटम बैलेंसिंग अगर कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन कुछ भी यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, जितने भी नंबर हैं उनको इक्वल करने के लिए हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे H2O है, उधर मान लीजिए 2H2 है, तो 2H2 मैं ऐसे बनाऊंगा। कुछ बच्चे होते हैं कि 2H2 नहीं, मेरे को ऐसे बनाना पसंद नहीं है, मैं ऐसे बनाऊंगा इस ऑक्सीजन को 2 नहीं। अगर ऑक्सीजन को मेरे को ये जैसे H2 है, फिर से बता रहा हूँ, यही लिख देता हूँ बच्चों, ये H2 है। जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरा इधर ऑक्सीजन 2 है, तो मैं ऑक्सीजन को 2 कैसे बना सकता हूँ, एक तो ऐसे 2 बना सकता हूँ ऑक्सीजन को, ठीक है, और एक ऐसे ना बना के दूसरा मेथड क्या है बच्चों, इस ऑक्सीजन को मैं 2 ऐसे बना सकता हूँ। तो ध्यान रखना, ऐसे हमें कभी भी नहीं बनाना। क्यों? क्योंकि ये हमारा पानी है, पानी मतलब जीवन देता है, और ये हाइड्रोजन परऑक्साइड जहर है जो जीवन लेता है। तो आपके 2 के चक्कर में आपने तो पूरा प्रोडक्ट ही, कंपाउंड ही क्या कर दिया, अलग कर दिया, जो कि गलत है, बिल्कुल गलत है। समझ में आया? तो कभी भी मैं बैलेंसिंग कर रहा हूँ तो मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा, यहाँ कभी भी नहीं करूँगा। अगर इन दोनों के बीच प्लस साइन है तो मैं यहाँ करूँगा, तब भी यहाँ तो मैं नहीं करूँगा। ओके, तो आशा करता हूँ आ गया होगा समझ में। अब देखो मेथड क्या है बैलेंसिंग का, CHO मेथड। क्या मेथड यूज करेंगे, CHO। ये जब 2009 में जब मैं एलन में पढ़ता था, तब मेरे टीचर ने बताया था कि ये CHO मेथड आपको बुक में भी नहीं मिलेगा। सबसे अच्छी बात तो ये है, ठीक है। CHO फिर मेथड क्यों अप्लाई किया, इससे क्या होता, थोड़ा सा इजी हो जाएगा बच्चों, और कुछ भी नहीं है। आप अपने मेथड से भी कर सकते हो, आप पहले किसी को भी ले सकते हो, पर मैं हमेशा CHO लेता हूँ तो CHO मेथड से ही लूंगा। CHO मतलब सबसे पहले मैं कार्बन को बैलेंस करूंगा, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करूंगा, फिर ऑक्सीजन को, और उसके बाद जो भी बचा है उसको मैं किसी भी सीक्वेंस में ले लूंगा। उसके बाद जो भी बचा है उसको मैं कोई भी सीक्वेंस में ले लूंगा। सबसे पहले मैं किसको बैलेंस करूंगा, कार्बन को बैलेंस करूंगा, फिर हाइड्रोजन को, फिर ऑक्सीजन को। उसके बाद जो भी मेटल है, नॉन मेटल है, जो भी होता है उसको रैंडमली किसी ऑर्डर में भी मैं ले सकता हूं। ओके, फिर से बताता हूं, सबसे पहले मैं कार्बन को बैलेंस करूंगा, फिर हाइड्रोजन को, फिर ऑक्सीजन को। जरूरी नहीं है बच्चों आप इस मेथड का यूज करो, आप पहले किसी को भी ले सकते हो। ये कोई रूल भी नहीं है कि सबसे पहले कार्बन ही लेना, नहीं। इससे क्या होगा, आपको एक फ्लो बन जाएगा, ठीक है। आप ऐसे भी करके देखना, वैसे भी करके देखना, जो अच्छा लगे वैसे करना, नो प्रॉब्लम। तो सबसे पहले मैं कार्बन, अब कार्बन तो है नहीं, तो जो है नहीं उसको छोड़ो, जो है नहीं, है ही नहीं तो कहाँ से करोगे बैलेंस, है ही नहीं तो मैं खुद पैदा करूंगा फिर बैलेंस करूंगा, नहीं, ये नहीं करना। दूसरा हमारा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को बैलेंस करो। यहाँ पर 2 है, ये देखो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है। हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस है, जो बैलेंस है उसको छेड़ो मत, ये ऑलरेडी बैलेंस है, मैं इसको नहीं छेड़ूंगा। ओके, नाउ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ देखिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। 1 को 2 मैं कैसे कर सकता हूँ, कुछ बच्चे होते हैं यहाँ मैं 2 कर दूंगा, नहीं, यहाँ पर 2 नहीं करते, कहाँ करेंगे, यहाँ पर। फिर बता रहा हूँ यहाँ 2 करेंगे। अब ये हमारे पास, जैसे ही मैंने यहाँ 2 किया, ऑक्सीजन तो 2 हो गया, पर मुझे साफ नजर आ रहा है कि ये मेरा जो हाइड्रोजन है ये बदल गया, पहले जैसा ना नहीं रहा। अब ये क्या है, 4 हो गए, इधर 2 है, ये देखो 2 दूनी 4, 2 × 2 4 हो गए, तो 4 हो गए, इधर तो 2 है, तो 2 को, इसको भी मेरे को अब क्या करना है, 4 करना है। इसको मैं अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 4 हो जाएगा, 1 से करूंगा तो 2 ही रहेगा, इट मीन्स 2 से। अब देखो लास्ट में एक बार बैलेंसिंग कर दी, उसके बाद देखो कि सारे बैलेंस है या नहीं है। हाइड्रोजन स्टार्ट कर दूं, हाइड्रोजन 4, इधर भी 4, ऑक्सीजन इधर 2, इधर भी ऑक्सीजन 2, इट मीन्स हमारी रिएक्शन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सारे 2 ही चीजें बैलेंस है, इट मीन्स इट इज ए बैलेंस। पहला एग्जाम्पल, चारों के चारों एग्जाम्पल करेंगे, और इनके करने के बाद आप कोई भी इक्वेशन लिखना अपनी इच्छा से और कोशिश करना उसको बैलेंस कर को। कंफर्म बोल रहा हूँ कि आप कर पाओगे, ठीक है। दूसरा CH4 प्लस O2। CH4 क्या होता है बच्चों, मीथेन। मीथेन जो घर में गैस चूल्हा होता है ना, जो मम्मी पूरे दिन रात खाना पकाती रहती है, उस चूल्हे के अंदर ये गैस है, मीथेन गैस, जिसकी वजह से वो जल रहा है इतना। ओके, ये बनेगा CO2। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड हम भी बाहर निकालते हैं हमारे शरीर से एज ए वेस्ट मटेरियल, ओके, इन फॉर्म ऑफ गैस। ये हो गया हमारी इक्वेशन। अब हम इक्वेशन को क्या करेंगे, बैलेंस करते हैं। बैलेंस कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिए। फिर से मैं CHO मेथड को याद करूंगा एक बार और। CHO सबसे पहले कार्बन, कार्बन को हम मैंने देखो कि इधर एक कार्बन है, इधर भी एक एक कार्बन है, कार्बन बैलेंस है, ओके, आगे बढ़िए, जो बैलेंस है उसको रहने दो और आगे बढ़िए। फिर मैं हाइड्रोजन को बैलेंस करूंगा। हाइड्रोजन मैंने यहाँ देखा, ये देखो ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है यहाँ पर, और यहाँ पर कितने हैं, 2 ही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ
कम है या ज़्यादा है, कम वाले में ज़्यादा कर देंगे तो इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ मैंने 2 कर दिया, 4 4 हो गए कौन, हाइड्रोजन। अब बात करते हैं ऑक्सीजन, 3 नंबर पे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इधर देखेंगे तो कितना है 2, और यहाँ पर देखेंगे तो कितना है 2 + 2, 2 + 2 कैसे 4 है, ध्यान से देखना बच्चों, ये 2 + 2 कैसे 4 है। ये जो ऑक्सीजन है ये 2 से मल्टीप्लाई है, 2 से मल्टीप्लाई का मीन्स ये हाइड्रोजन तो यहाँ पर 2 2 4 हो गए, और ऑक्सीजन ये देखो ये वाली ऑक्सीजन 2 बार है, 2 बार हो गई। तो ये H2O अगर 2 बार है इसका मतलब H2O और H2O ये तो 2 बार हो गया। इट मीन्स ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन हो गई। तो टोटल हमारे पास 4 है, इधर 2 ही है, तो 2 को 4 मैं कैसे कर दूं, ऐसे कर दूं, हो गया 2 से 4, 2 का 4 हो गया, और सारे के सारे बैलेंस भी हो गए। देख लीजिए कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये 3 चीज को तो मैंने बैलेंस कर दिया, और तो हमारी रिएक्शन में कुछ है भी नहीं। मेथड क्या था, सबसे पहले कार्बन बैलेंस करो, फिर हाइड्रोजन बैलेंस करो, फिर ऑक्सीजन, उसके बाद जो बच जाए उसको ले लो। बचा तो कुछ है ही नहीं, बचा कुछ नहीं, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, आवर क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। अंडरस्टूड, आशा करता हूँ समझ में आ रहा है। ठीक है, तो CH4 + 2O2। अब तीसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। तीसरा एग्जाम्पल ध्यान से देखना, ध्यान से क्यों देखना, क्योंकि मिस्टेक ना हो। उम्मीद करता हूँ एक में ही समझ में आ जाए। FeSO4 ये हमारा आयरन सल्फेट बोलते हैं इसको नाम। इन जितने भी ये जो केमिकल होते हैं ना बच्चों, इसको बोला करो नाम। देखो कैसे सर आयरन सल्फेट, ऐसे मतलब कैसे कैसे आयरन सल्फेट कैसे हो गया, हमें पता है Fe का मतलब आयरन, SO4 मतलब सल्फेट, तो दोनों को मिलाया तो हमारे साइड चेन में जो SO4 आता है तो ये किसका काम करता है, सल्फेट का काम करता है। तो हमारे जैसे COCa है ये कैल्शियम है, और CO3 साइड चेन के रूप में आता है, साइड में बनता है, तो क्या किसका काम करता है, कार्बोनेट का। सल्फेट, कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड ये अलग अलग होते हैं, धीरे धीरे आप सीख जाओगे, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। फिर हम बैलेंसिंग की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, बैलेंसिंग। FeSO4 तीसरा, ये क्या बनाएगा, Fe2O3 + SO2, ये यहाँ लिख देता हूँ, + SO3, ये है हमारा। ठीक है, FeSO4 से क्या बना रहा है, Fe2O3 + Fe। सबसे पहले CHO मेथड को याद करेंगे, फिर से CHO मेथड अगेन अगेन अगेन। कार्बन हमारे पास देखेंगे, कार्बन इक्वेशन में है या नहीं है, बोलो बोलो बोलो, नहीं है कार्बन, कार्बन को छोड़ो आगे बढ़ो। हाइड्रोजन देखो इक्वेशन में है या नहीं है, देखो देखो, इधर देखा हाइड्रोजन नहीं मिला, इधर मैं ढूंढ रहा हूँ हाइड्रोजन नहीं मिला, इट मीन्स हमारी इक्वेशन में हाइड्रोजन भी नहीं है, छोड़ो आगे बढ़ो। फिर बात करते हैं ऑक्सी, ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो मिला मेरे को। ठीक है, तो ऑक्सीजन काउंट करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, और यहाँ पर 3 ऑक्सीजन। टोटल कितनी ऑक्सीजन हो गई, 3 3 6 2 8, 8 ऑक्सीजन है मेरे पास, और यहाँ पर तो मेरे पास 4 ही है। 4 को 8, 8 का 4 कैसे करूँ, यहाँ पर 2 कर दो तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन 8 हो जाएगा। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज, जैसे ही मैंने ऑक्सीजन यहाँ पर 2 कर दिया, ओके, यहाँ पर चेंज हो गया, बट हमारे साथ आयरन और सल्फेट भी चेंज हो गया। आयरन ऑलरेडी 2 है, यहाँ पर 2 है, आयरन में कोई बदलाव नहीं आया। किस में बदलाव आया है, सल्फेट, सल्फर में। ठीक है, ये जो सल्फर देखो यहाँ पर 2 है सल्फर, और यहाँ पर हमारे पास 1 और 2 है। इट मीन्स सारे के सारे बैलेंस है, एक ऑक्सीजन बैलेंस करते ही सारे बैलेंस हो गए। फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया आपका। 2FeSO4, पहले तो मान लीजिए ये है हमारे क्वेश्चन। ठीक है, हम किसको याद करेंगे, फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, CHO मेथड को याद करेंगे। ठीक है, कार्बन हमारी इसमें नहीं है, आगे बढ़ो। हाइड्रोजन हमारे इसमें नहीं है, आगे बढ़ो। हमारा तीसरे नंबर पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मुझे नजर आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑक्सीजन देखिए कितनी है, 3 3 6 2 8, 8 ऑक्सीजन है, और यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है। 4 को 8 में कैसे कर सकता हूँ, 2 से ऑक्सीजन बैलेंस करती। उसके बाद जो बच गए उसको कोई भी सीक्वेंस में ले लो। बचा क्या, एक तो आयरन बचा और एक सल्फर बचा, इधर भी आयरन बचा और सल्फर। फिर बता रहा हूँ कोई भी सीक्वेंस ले लो, बच गया उसको कोई भी सीक्वेंस। सबसे पहले बचे हुए को मैं पहले आयरन ही कर रहा हूँ। आयरन इधर देखा मैंने 2 है, इधर भी मैंने 2 है, आयरन ऑलरेडी मेरे को बैलेंस मिल रहा। आयरन के बाद मैं क्या देखूंगा, सल्फर, सल्फर इधर 2 है, इधर भी देखो एक सल्फर ये रहा, एक सल्फर ये रहा, इधर भी सल्फर 2 है। इट मीन्स क्या, मेरा सल्फर भी क्या है, बैलेंस है। इट मीन्स मेरी ये पूरी रिएक्शन बैलेंस है। अब ये बैलेंसिंग की लास्ट रिएक्शन देखेंगे। ओके, ये थोड़ा सा इजी थी पर थोड़ी सी टफ भी थी, इजी भी थी टफ भी थी, मतलब टफ इजी दोनों एक साथ कैसे हो गई। इजी इसलिए थी कि एक बार आपको एक ही चीज बैलेंस करके हो गया, टफ इसलिए थी कि सारे बैलेंस करने थे, पर इजी इसलिए हो गई कि एक ही बैलेंस करने पर सारे बैलेंस हो गए। ये सबसे अच्छी बात है। तो आपका नजरिया, देखने का नजरिया, कि आपका काउंट करने का नजरिया, काउंट मतलब जो नंबर ऑफ एटम होते हैं छुपे रहते हैं बच्चों, समझ में नहीं आएगा कौन कहाँ छुपा रहता है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इतना सा करना है, क्या करना है,
आपको सिर्फ इतना सा करना, ध्यान से देखना है। ध्यान से मतलब कोई छुपा हुआ ना रह जाए। अगर कोई छुपा हुआ रह गया तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, एग्जामिनर क्या करता है, ऐसे छुपा छुपा के रखेगा आइटम। PbNO3 की ट्वाइस, यहाँ पर देखो कैसे छुपे छुपे मिलेंगे आपको, परेशान हो जाओगे ढूंढते हुए। ठीक है, पर हमारा एक मेथड है, उसको ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं होगी। PbO बना है और क्या बनेगा, NO2, ये लास्ट एग्जाम्पल है। ओके, उसके बाद चिंता मत करो, आप बैलेंसिंग कर पाओगे। हमारा ये PbNO3 की ट्वाइस, मैं जानता हूँ ये क्या है, ये है लेड नाइट्रेट। इसकी बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है, एक बार आ भी चुकी है एग्जाम में, दोबारा भी आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, पर सिंपल भी है। पर ये इक्वेशन याद रखना बच्चों, इसका नाम क्या है, Pb मीन्स लेड, NO3 मीन्स नाइट्रेट, तो नाम क्या हो गया इसका, लेड नाइट्रेट। नाम जितने भी आप केमिकल कंपाउंड पढ़ोगे बच्चों, एक बार अपने मुंह से नाम उसका जरूर बोलना। जैसे धीरे धीरे नाम बोलते जाओगे ना, आपको नाम आने लग जाएंगे सबके, देखते ही बताओगे। PbNO3 मीन्स Pb लेड, NO3 नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, नाम देखते ही बता दोगे। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम आपको आना चाहिए, इसको क्या बोलते हैं, क्योंकि बिना नाम के तो आप कैसे बुलाओगे किसी को, नाम पता होगा तभी तो बुलाओगे। ठीक है, पर तो बोल दोगे सर ये वही है, वही है तो कौन सा वही है, नाम तो बताओ। ठीक है, तो ये PbNO3 के, हमारा काम क्या है, बैलेंस करना। बैलेंस कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, वही CHO मेथड को याद करूंगा मैं, मेरा ये बहुत फेवरेट मेथड है CHO। सबसे पहले कार्बन देखो, कार्बन बैलेंस है या नहीं है, नहीं है, कार्बन तो हमारे इक्वेशन में नहीं है, तो कार्बन को छोड़ दीजिए। फिर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन को ध्यान से देखो, है क्या हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी नहीं है, छोड़ो इसको, आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन को हम देखते हैं, तो ऑक्सीजन हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए बच्चों, 3 2 जा 6, 6 तो ऑक्सीजन है यहाँ पर, और इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2 और 2, इधर 5 है, इधर क्या है 5 है। अब मुझे पता है इसको मेरे को 6 बनाना है 5 से, तो 2 2 4 और यहाँ 2 कर दूंगा तो 6। ऑक्सीजन तो मैंने कर दिया बैलेंस, आए समझ में क्या किया, कुछ नहीं किया। यहाँ पर ऑक्सीजन 6 है, यहाँ पर कितने हैं, 2 2 4 और 1 5 था, और 5 में मैंने यहाँ 2 लगा दिया, तो ऑक्सीजन यहाँ पर क्या हो गए, 6 हो गए। ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए। ऑक्सीजन के बाद देखिए किसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन के बाद जो बच गया है ना, कोई भी सीक्वेंस ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, सबसे पहले बचा हुआ क्या है, ऑक्सीजन के बाद हमारा एक बच गया Pb देखिए यहाँ पर Pb कितना है, 2। इसको मैं 2 कैसे, बिना सोचे समझे यहाँ 2 लिख दिए, मुझे पता मेरा Pb 2 हो गया, पर लिखने के बाद एक चीज और भी पता है कि मेरे और चीजें बिगड़ चुकी है, सब डबल हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो Pb तो बैलेंस हो गया, अब मेरा क्या गड़बड़ हो गया, N, ऑक्सीजन बिगड़ गया। ऑक्सीजन से पहले N भी देखिए, ठीक है, तो ऑक्सीजन अगर देखना चाहूँ तो पहले 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 हो गए ऑक्सीजन, तो 12 कैसे होंगे, 2 2 4, ये हमारा 2, यहाँ नाइट्रोजन बैलेंस हो जाएगा, Pb बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन यहाँ अगर 2 ऐड करूंगा तो हमारा नाइट्रोजन भी बैलेंस हो जाएगा। नाइट्रोजन कितने हैं, 2 2 जा 4 है नाइट्रोजन, सॉरी नाइट्रोजन कितनी है बच्चों, 4 है, तो आपको 4 ही नाइट्रोजन लेने पड़ेंगे। ये लो ये हमारे 4 नाइट्रोजन है, ठीक है। अब नाइट्रोजन मेरा बैलेंस हो गया यहाँ पर 4 लगाने से। अब देखिए बचा कौन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दोबारा बिगड़ गया, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 6 हमारे पास, तो 2 2 4 और 4 4 दूनी 8, 8 और 4 12, 12 इधर है 12 इधर है, सारी चीज़ें बैलेंस हो गई बच्चों। फिर से देखना, ध्यान से देख लो, थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी एक बार और बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए PbNO3 की ट्वाइस, ये इरेजर लेके पहले तो इसको इरेज कर देता हूँ, इसको भी इरेज कर देता हूँ। अब देखिए, अब अपना कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बच्चों, फिर से वही मेथड CHO मेथड, कोई कार्बन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन से स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीजन हमारा कितना है देखिए, 2 2 4 और 1 5, इधर 5 है इधर 6 है, तो इधर मैं 2 करके इसको तो मैंने सबसे पहले ऑक्सीजन बैलेंस कर दिया, 6 और 6। ओके, अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन देखिए, सॉरी Pb की, ठीक है, Pb कितने हैं, यहाँ पर 2 हो गए, यहाँ मैं 2 ऐड करूंगा तो Pb हमारे क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, Pb भी बैलेंस हो गया, यहाँ पर 2 ऐड करने से Pb बैलेंस हो गया। ओके, अब Pb के बाद देखिए बचा कौन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमारे यहाँ पर कितने हैं, 2 बार यहाँ है 2 बार यहाँ है, 2 बार कितने हो गए, देखो ये ब्रैकेट को ध्यान से देखना, ये ब्रैकेट के अंदर, इसका मतलब ये नाइट्रोजन 2 बार है, 2 बार भी कितनी बार है, 2 बार और है, इसका मतलब 4 है,
तो यहाँ मैं 4 करूँगा तो मेरा नाइट्रोजन तो बैलेंस हो जाएगा। अब सिर्फ मेरा पीवी बैलेंस है, नाइट्रोजन बैलेंस है, मेरा ऑक्सीजन बच गया, क्योंकि ऑक्सीजन पहले तो मैंने बैलेंस किया था, अब दोबारा डिसबैलेंस हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 दूनी 6 दूनी 12 है, यहाँ पर काउंट कर लीजिए, 2 4 दूनी 8 हो, 2 10 हो, 2 12 12 12 ऑक्सीजन हो गए। इट मीन्स हमारी ये बैलेंसिंग कंप्लीट हो गई। आज का टॉपिक एक्टिविटी, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा सिंपल था। पोटेशियम लेड नाइट्रेट और उसमें डाले येलो कलर का प्रेसिपिटेट निकलता है, ठीक है। लेड आयोडाइड बनता है, चेंजेस में चेंज कलर, हवा पानी गैस निकलना, टेम्परेचर चेंज होना, कलर कुछ भी हो सकता है। केमिकल इक्वेशन तो बहुत ईजी है। बैलेंसिंग कैसे बनाओगे, एक साइड रिएक्टेंट एक साइड प्रोडक्ट, दोनों के बीच में एरो का साइन, और बैलेंसिंग अभी लास्ट में किया है। फिर भी अगर कोई बैलेंसिंग में कोई दिक्कत आ रही है, आप कमेंट बॉक्स में जाके टाइप कीजिए अपना क्वेश्चन और आपको अपना रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू बच्चों।